غار ہیرا، یہ آپ لوگوں کے الٹے ہاتھ کی طرف ذرا غور کریں. غار ہیرا جہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا تھا اپنے الٹے ہاتھ کی طرف، مطلب لیفٹ ہینڈ. دیکھیں کچھ حجاج کرام آج اوپر جا رہے ہیں تو اس پہاڑی کا سفر 2.5 سے 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں اوپر جانے کے لیے. تو جن کے دل میں حب ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، اللہ پاک دیتا ہے، وہ لوگ تو اوپر جاتے ہیں. اکرام، میں آج آپ لوگوں کے سفر کا ساتھی ہوں. مکہ سے طائف تک کا یہ سفر ہے ہمارا. انشاءاللہ تعالی مکہ سے طائف ہم زیارات بھی کریں گے اور احرام بھی باندھیں گے. واپسی آ کے طائف کی جو زیارات ہوں گی، وہ پہلی زیارات ہوگی حضرت سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سید رضی اللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے. تفصیل قرآن، مفصل قرآن آپ کو بلایا جاتا ہے. یہ وہ پہلے صحابی تھے جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا تھا. پہلی زیارت کرنے کے بعد دوسری زیارت ہماری ہوگی انگورے کے باغ مسجد اعداس کی. تیسری زیارت جو ہے وہ مسجد رسول اور ان 2 پہاڑوں کی جہاں عذاب کا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ نازل ہوا تھا. اگلی جو زیارت ہوگی وہ ہوگی مسجد علی المرتضیٰ جو عثمانیہ دور میں بنائی گئی تھی. تو پیارے حجاج کرام، یہ زیارات ہوں گی، ان کے بعد ہم میقات کی طرف روانہ ہوں گے. میں پیارے حجاج کرام اب اس کی تفصیل آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فروش تھے. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا آپ کی زندگی اور نبوت کا سب سے مشکل سفر کون سا تھا؟ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب دیدہ ہو گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد آپ نے فرمایا میری نبوت اور میری زندگی کا مشکل ترین سفر جو تھا وہ طائف کا تھا. پیارے حجاج کرام، جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ المکرمہ میں رہنا مشکل کر دیا مکہ کے لوگوں نے، تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے طائف تشریف لے گئے. جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے طائف تشریف لے گئے اسلام کی دعوت کے لیے، تو وہاں آپ کی ملاقات 3 بڑے سردار سے ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں سرداروں کو اسلام کی دعوت دی. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام اور دین کی دعوت دی تو معاذ اللہ ان لوگوں نے نازیبا الفاظ اپنائے. نازیبا الفاظ بھی اپنائے اور یہاں تک کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کی. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے آوارہ اور اواش لڑکوں کو لگا دیا. تو پیارے حجاج کرام، جب اواش اور آوارہ لڑکوں کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، یہ وہ جگہ ہے جہاں اب ہماری پہلی زیارت ہوگی حضرت سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے. تفصیل قرآن، مفصل قرآن جہاں پر بیٹھ کر درس دیا کرتے تھے، تعلیم دیا کرتے تھے. اب اس جگہ جو زیارات ہوں گی وہ ہوں گی حضرت سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک اور ان کے 2 صاحبزادوں کی، واللہ عالم یہ موجود ہیں یا نہیں، بتایا اسی طرح جاتا ہے.
उस जगह की ज़ियारत जहाँ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून मुबारक का पहला कतरा गिरा था। ये ताइफ की सबसे बड़ी मस्जिद है। यहाँ लाइब्रेरी मौजूद है जहाँ पत्थरों पे लिखा हुआ कुरान मजीद बगैर ज़ेर ज़बर के जो लिखा जाता था, बताया इसी तरह जाता है वल्लाहु आलम ये मौजूद है या नहीं। अगर वो लाइब्रेरी खुली हुई तो आप लोग अंदर उसकी ज़ियारत करेंगे, ना खुली हुई तो बाज़ औक़ात खुली होती है, बाज़ औक़ात बंद होती है। खुली हुई तो आप लोगों इसकी ज़ियारत करेंगे, अगर बंद हुई तो बाहर से। तो प्यारे हजाज कराम, जब ताइफ के लोगों ने, 3 बादशाहों ने आवारा और आवाश लड़कों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगाया, तो माज़अल्लाह उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारना शुरू किए। यहाँ तक कि जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्द की शिद्दत, तकलीफ की वजह से बैठते तो वह दोबारा खड़ा करते और फिर पत्थर मारते। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से तशरीफ़ लेकर अंगूरों के बाग में चले गए ज़ख्मी हालत में। तो प्यारे हजाज कराम, जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हालत में अंगूरों के बाग तशरीफ़ ले गए, वहाँ आपने क़याम किया, तो वहाँ तीसरे बड़े सरदार ने जब देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और बोलता है ये क्या किया ताइफ के लोगों ने कि दुश्मन की आंखों में भी आंसू आ गए। तो प्यारे हजाज कराम, बादशाह ने अपने नौकर अद्दास को बोला जाके अंगूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करो और बोलना आपको आपकी रिश्तेदारी की कसम ये अंगूर नोश फरमाएं। तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अंगूर नोश फरमाए। तो अद्दास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोलते हैं आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? ये लोग रहमान और रहीम को नहीं मानते। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं नबी हूँ, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का भाई। तो अदास ने बोला वो तो रुखसत हो गए हैं, वो चले गए, वो हमारे नबी थे, आप उनके भाई कैसे हुए? तो आका ने फरमाया नबी नबी का भाई होता है, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का भाई। तो अदास ने बोला आका से कि आका मुझे कलमा शरीफ पढ़ाएं, मुझे मुसलमान करें। तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले इनको अद्दास बोलते थे, जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया, ये इन्हीं के नाम की मस्जिद है, मस्जिद अद्दास। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अद्दास को कलमा पढ़ाए, कलमा पढ़ाने के बाद मुसलमान हो गए, तो आपको अद्दास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बुलाया जाता है। तो ये मस्जिद वहीं तामीर की गई है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे आका ज़ख्मी हालत में तशरीफ़ फरमाई थी। उसी बेल के नीचे उस बेल को काट कर आज मस्जिद तामीर की गई और इस मस्जिद का नाम रखा गया मस्जिद अद्दास, मस्जिद अद्दास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो प्यारे हजाजे कराम, उसके बाद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ से तशरीफ़ ली मस्जिद रसूल में। जब मस्जिद रसूल पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कोनी मुबारक से टेक लगाई, जिसको मस्जिद रसूल बोलते हैं। प्यारे हजाज कराम, मस्जिद रसूल में कुछ लोग बोलते हैं आपने क़याम फरमाया, नमाज ज़ोहर अदा की, वल्लाहु आलम आपने नमाज अदा की या नहीं, लेकिन आपने कोनी मुबारक से टेक लगाई थी उस मस्जिद में। उस मस्जिद को मस्जिद रसूल बोलते हैं। और इसी मस्जिद के ऊपर वो पत्थर मौजूद है जो माज़अल्लाह ताइफ के लोगों ने गिराया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो जाए। तो जब आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पत्थर को देखा और फरमाया ए पत्थर
अगर अल्लाह के हुक्म से आ रहा है तो आ जा, नहीं तो अगर ताइफ के लोगों ने फेंका है तो वहीं रुक जा। जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो पत्थर वहीं रुक गया। वो ताइफ के लोगों ने फेंका था कि माज़अल्लाह हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो जाए। तो ये पत्थर आज भी उसी जगह मौजूद है। एक पहाड़ इसी पत्थर के साथ है, दूसरा पहाड़ मस्जिद अलीउल मुर्तज़ा के साथ। मस्जिद रसूल की ज़ियारत करने के बाद हम गाड़ी को दूसरी तरफ घुमाएंगे, मस्जिद रसूल की तरफ। मस्जिद रसूल की ज़ियारत करने के बाद मस्जिद अलीउल मुर्तज़ा की तरफ, वहाँ पहाड़ की ज़ियारत करते, मस्जिद अलीउल मुर्तज़ा की ज़ियारत करते, फिर हम अगले सफ़र की तरफ रवाना होंगे। तो दूसरा पहाड़ अलीउल मुर्तज़ा वाली मस्जिद के ऊपर है और वो कच्ची बस्ती इन दो पहाड़ों के दरमियान हुआ करती थी। कुछ पहाड़ के पीछे है, कुछ यहाँ हुआ करती थी, जहाँ अजाब का फरिश्ता नाजिल हुआ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ, और बोलते हैं हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आका आप हाथ उठाएं और इन लोगों के लिए बद्दुआ करें। हम अभी इस बस्ती को रेज़ा रेज़ा निश्तो नाबूद कर देंगे। तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हाथ उठाए तो दुआ के लिए, और फरमाया ये ना सही तो इनके आने वाली नस्लों से मुझे इस्लाम की खुशबू आ रही है, ये ज़रूर इस्लाम लेकर आएंगे। गारे हीरा, ये आप लोगों के उल्टे हाथ की तरफ ज़रा गौर करें। गारे हीरा जहाँ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया था, अपने उल्टे हाथ की तरफ, मतलब लेफ्ट हैंड। देखें कुछ हजाज कराम आज ऊपर जा रहे हैं तो इस पहाड़ी का सफ़र 2.5 से 2 घंटे लग जाते हैं ऊपर जाने के लिए। तो जिनके दिल में हुब होती है, हिम्मत होती है, ताकत होती है, अल्लाह पाक देता है, वो लोग तो ऊपर जाते हैं। तो प्यारे हजाज कराम, जब आका ने हाथ उठाए तो दुआ के लिए, फरमाया मुझे ये नहीं सही तो इनके आने वाली नस्लों से इस्लाम की खुशबू आ रही है। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। दुआ करने के बाद इस मस्जिद की ज़ियारत होगी आपको, मस्जिद रसूल की। तमाम ज़ियारत मुकम्मल होने के बाद हम लोग अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना होंगे। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में आप लोगों की ज़ियारत कबूल व मकबूल फरमाए। आपका यहाँ आना, हम लोग गुनाहगार हैं, आप लोग नेक लोग हो, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक अपने प्यारों की दुआएं बहुत जल्द कबूल करता है। जज़ाकल्लाहुल खैर।